کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہیں پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کے سامنے چین پنگن نام کا ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ چین پنگن ابھی بھی یہاں پر ہے اور اسی لیے تم اپنا ایک قدم بھی آگے بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوراً ہی اپنی طاقت کا استعمال کرنے لگتا ہے اور اس طرح ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر چین پنگن بھی اپنی طاقت کا استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ فوراً اپنی تلوار کو طلب کر کے حملہ کرنے لگتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت ساری تلواریں آ جاتی ہیں جو فوراً تمام لوگوں پر حملہ کرنے لگتی ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں کر پاتا اور وہ سب بری طرح مارے جانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے منظر میں ہم چین پنگن کو دیکھتے ہیں جو کہ اس وقت ایک غریب اور یتیم لڑکا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافی وقت پہلے اس کے والدین کی موت ہو گئی تھی، اسی لیے چین پنگن ان کے سامنے اگر بتی جلا رہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے دعا کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج پھر سے اپنے والدین کو یاد کر کے اداس ہو گیا تھا اور اسی لیے وہ باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ مگر تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پڑوسی سیو یانگ اس پر پتھر پھینک کر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اگلے مہینے میں اور جی یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چین پنگن زیادہ کچھ نہیں بولتا اور کہتا ہے کہ راستے میں محتاط رہنا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چین پنگن اپنا کام کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، مگر ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیو یانگ نہیں مانتا اور چین پنگن سے کہتا ہے کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ اور بغیر کسی ڈر کے چیزیں چرا لو، مگر اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چین پنگن اس کی حرکتوں پر کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے اس کی باتیں سنتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیو یانگ آخرکار تنگ آ جاتا ہے اور اپنا کنکر پھینک کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ غریبوں کی قسمت بس یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ امیروں کے ہاتھوں بھلا دیے جاتے ہیں، مگر تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اجیگو وہاں آ جاتی ہے اور چین پنگن سے کہتی ہے کہ کیا تم یہ کنکر مجھے دے سکتے ہو کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چین پنگن فوراً اس کی بات مان لیتا ہے اور کنکر اٹھا کر اسے دے دیتا ہے، مگر تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ چین پنگن کا دوست گوکن بھی وہاں آ جاتا ہے جو سیو یانگ سے کہنے لگتا ہے کہ تمہاری مند اور چین پنگن ایک ساتھ فلرٹ کر رہے ہیں۔ ایسی باتیں کر کے وہ مذاق کرنے لگتا ہے، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیو یانگ کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی چین پنگن کو تمہاری ماں کے ساتھ جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب گوکن اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا؟ کیونکہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ تم حکومت کے انسپکٹر الفانج بیٹسن کے بیٹے ہو اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی صاف آنکھیں ہیں۔ جس کے بعد سیو یانگ ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹے آج خاموش ہو جاؤ کیونکہ آج تمہارا باپ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارنا نہیں چاہتا۔ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اجیگو یہ سب باتیں سن کر مسکرا رہی تھی، تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ گوکن دوبارہ وہاں آ جاتا ہے اور پھر سے مذاق کرنے لگتا ہے، اسی لیے جیگو فوراً وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گوکن پھر سے جیگو کو آواز دیتا ہے، لیکن وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے چلی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوکن چین پنگن کے گھر آ جاتا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے والد کی طرح بننا ہے، اسی لیے میں تمہیں اس کے لیے قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے دیے گئے لوچ کو دکھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو لوچ مجھے دیا تھا وہ اب پہلے سے تھوڑا بڑا ہو گیا ہے۔ پھر وہ چن پنگن کو بتاتا ہے کہ میری ماں نے بیکن بنایا ہے اور اسی لیے وہ تمہیں کھانے کے لیے بلا رہی ہے، لیکن اس پر چن پنگن کہتا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آج رات میں جلدی اپنے بستر پر جانا چاہتا ہوں۔ مگر تب ہم دیکھتے ہیں کہ بیچارہ گوکن کی ناک بہہ رہی تھی اور وہ اسے دوبارہ منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چن پنگن ابھی بھی انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کل مجھے خط پہنچانے کے لیے جانا ہے اور اسی لیے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چن پنگن گوکن کو فش دیتا ہے جسے لے کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن تب وہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ہم یہاں غیر ملکیوں کی مدد کرنے کے لیے ہیں، ویسے بھی ڈریگن کولن تو بند ہو گیا ہے، اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم آخر کس لیے یہاں آئے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ میری ماں نے کہا ہے کہ وہ سب خدا ہیں اور اسی لیے ہم ان سے بہت سا پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چن پنگن اس پر کچھ نہیں کہتا اور اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گوکن بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور چن پنگن بھی سونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاؤن کے داخلی دروازے پر کئی لوگ آئے ہوئے تھے جہاں ان کے سامنے ایک جادوئی پردہ لگا ہوا تھا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اندر نہیں جا سکتے۔ وہیں چن پنگن بھی خط لینے کے لیے وہاں آ گیا تھا۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی باہر نکلتا ہے جو سب سے پہلے وہاں آئے ہوئے لوگوں پر دھیان دیتا ہے اور اسی لیے وہ ان کے لیے گیٹ کھول دیتا ہے۔
मगर उसके बाद भी वो उन्हें अंदर नहीं जाने देता और कहता है कि तुम गैर मुल्की फिर से यहाँ मौके की तलाश में आए हो, इसीलिए हर फैमिली को एक सोना और तांबे का सिक्का देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार सब लोग इस पर राजी हो जाते हैं और सोने का सिक्का देकर वहां से जाने लगते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि चुन पिंगिन को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बस उनकी तरफ देखता रहता है। तब हम देखते हैं कि एक लड़की इसका मजाक उड़ाती है, जबकि एक देवहैकल आदमी इसे झूठते हुए आगे जाता है। तब वो आदमी उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या कहा। इस पर चुन पिंगिन कुछ नहीं बोलता, जिस पर वो आदमी कहता है कि उन्होंने कहा कि तुम बहुत हैंडसम हो। अब ऐसे बातें करके वो इसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे खत पहुंचाने का काम देता है और फिर कहता है कि वो औरत बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं है। तब इस पर चुन पिंगिन कहता है कि इसने मार्शल आर्ट की मशक की हुई है। जिसके बाद वो आदमी इस पर कुछ नहीं कहता और फिर वहां से चला जाता है। तब चुन पिंगिन कहता है कि तुमने हर खत के बदले एक पेनी देने का वादा किया था और अभी भी 5 पेनी कम हैं। मगर हम देखते हैं कि वो आदमी उसकी कोई बात नहीं सुनता और इसीलिए चुन पिंगिन इस पर कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि आज से 3000 साल पहले एक अजीम शख्सियत जाहिर हुई और सही रास्ता पाकर इसने अकेले ही तलवार उठा ली, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो आदमी ड्रैगन के साथ मुआहदा नहीं कर सका। मगर 300 साल बाद जो भी ड्रैगन नजर आता वो इसे मार देता। अगर आखिरी ड्रैगन जंग की बात की जाए तो वो वाकई बहुत चौंका देने वाली थी। फिर वो कहता है कि सब पहाड़ भी उसके सामने अपना सर झुकाते थे क्योंकि चिंग यू बहुत खतरनाक था। फिर वो कहता है कि असली ड्रैगन का जिस्म खींचा जा सकता है और जब वो उड़ता है तो सूरज और चांद को भी ढांप लेता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो सरफेरी के सामने कुछ नहीं था और इसीलिए उनके दरमियान लंबी लड़ाई हुई। वहां पर ड्रैगन सरफेरी के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। फिर वो कहता है कि मुझे इस बात से नफरत है कि मेरा जन्म इतने सालों बाद हुआ क्योंकि मैं अपनी आंखों से ये सब नहीं देख सका। मगर तब गोकुन गुस्से में आकर कहता है कि तुम ड्रामा करना बंद करो और ये बताओ कि असली ड्रैगन आखिर में मरा आ नहीं। तब हम देखते हैं कि बाकी लोग भी ये जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि हाँ बताओ कि आखिर में क्या हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी साफ साफ कुछ नहीं बताता और फिर वो गोकुन की नाक साफ करने लगता है। फिर वो कहता है कि भले ही वो ड्रैगन हार गया लेकिन इसने 5 अनासिर वाले ड्रैगन को जन्म दिया। फिर वो कहता है कि इसके बाद बहुत से मौके पैदा हुए जो मशक करने वालों को अजीम रास्ते पर ले जाने में मदद दे सकते थे। फिर वो कहता है कि वो किस्मत वाले लोगों को चुनते हैं और इसीलिए हो सकता है कि नायाब मौका हमारे दरमियान ही छुपा हुआ हो, जिसे एक छुपे हुए ड्रैगन की शक्ल में देखा जा सकता है। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि इसे तलाश कैसे किया जाए तो मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग अफसुर्दा होकर वहां से चले जाते हैं। मगर वहीं गोकुन कहता है कि मैं अगले ब्रेकडाउन का इंतजार नहीं करना चाहता और इसीलिए मुझे इसके बारे में अभी बताओ। तब इस पर ओल्ड मैन कहता है कि मैंने सुना है यहाँ एक कदीम कुनवा है और इसीलिए अगर तुम मुझे वहां ले चलोगे तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि गोकुन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि मेरे इस कटोरे में बहुत सी राज पोशीदा है और अगर तुम मुझे इस कदीम कुनवे के पास ले चलोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकुन भी अब इसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया था। उधर हम देखते हैं कि चीन पिंगिन खत पहुंचाने के लिए निकल गया था, जहां वो एक ऐसे आदमी से मिलता है जो उसके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि चीन पिंगिन एक बड़े घर में जाने वाला था, इसीलिए वो पहले अपने कपड़े साफ करता है और फिर खत देने के लिए आगे बढ़ता है। तब एक आदमी इसे नाश्ता करने के लिए अंदर बुलाता है, लेकिन चीन पिंगिन सिर्फ शुक्रिया कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चीन पिंगिन एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। चीन पिंगिन वहां आकर बच्चों को देखने लगता है मगर कुछ भी नहीं कहता। हम देखते हैं कि मास्टर बच्चों को तालीम देने में मसरूफ था, इसलिए चीन पिंगिन इसे तंग नहीं करता। तब अचानक मास्टर की नज़र चीन पिंगिन पर पड़ती है। चीन पिंगिन थोड़ा सा गैर आरामदेह महसूस करता है, लेकिन मास्टर पहले तालीम पर तवज्जो देता है और फिर चीन पिंगिन से मिलने के लिए आता है। चीन पिंगिन इसे खत देता है। मास्टर कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए, जिस पर चीन पिंगिन खामोश रहता है। मास्टर चीन पिंगिन से कहता है कि शरीफ लोग धीरे चलते हैं और बाहर लबू है। फिर चीन पिंगिन अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। रास्ते में वो एक मार्केट से गुजरता है मगर पैसे कम होने की वजह से कुछ नहीं खरीदता। तभी वो एक आदमी को देखता है जिसके पास सुनहरी कार्प होती है। चीन पिंगिन बहुत खुश होता है और पूछता है कि क्या ये मुझे बेच सकते हो। आदमी कहता है कि ये मैं अपने पास रखना चाहता हूँ।
चीन पिंगिन जाने लगता है, तब आदमी इसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम लेना चाहते हो तो ले लो। चीन पिंगिन कहता है कि मेरे पास सिर्फ 5 सेनट है। आदमी थोड़ा सोचता है और मान जाता है, मगर इसी वक्त 2 दूसरे आदमी आते हैं और इसे 50 सेनट देकर कहते हैं कि ये हमें दे दो। आदमी फौरन राजी हो जाता है और चीन पिंगिन मायूस होकर चला जाता है। तभी वो लड़का चीन पिंगिन को कुछ सके देता है और कहता है कि तुम पहले आए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे हक में मामला तय कर दिया। चीन पिंगिन सके वापस करने की कोशिश करता है, मगर ओल्ड मैन अजीब नज़रों से देखने लगता है। पता चलता है कि इसका नाम ग्रीन रबो है। लड़का कहता है कि ये कार्प वाकई बहुत मुतासिर कुन है। रबो कहता है कि अच्छा हुआ हम सही वक्त पर आ गए, ये एक बहुत बड़ी मौका है और ये मुस्तकबिल में ड्रैगन में भी बदल सकता है। अगले मंजर में हम पिंडो नामी एक किस्मत बताने वाले को देखते हैं, जो चीन पिंगिन से कहता है कि तुमने सुनहरी कार्प को खो दिया, जो आगे चलकर ड्रैगन में बदलने वाला था। मगर चीन पिंगिन इसकी बात पर तवज्जो नहीं देता। पिंडो कहता है कि मैं जादुई अल्फाज भी लिख सकता हूँ और तुम्हारे आबाओ अजदाद के लिए दुआ कर सकता हूँ। चीन पिंगिन आखिरकार मान जाता है। फिर पिंडो इसे डराने लगता है कि तुम्हारे ऊपर एक बुरी रूह है और अगर तुम मजीद जाना चाहते हो तो इजाफी खर्च करना होगा। वो 5 सेनट मांगता है। चीन पिंगिन हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास 5 सेनट है? मगर पिंडो ज्यादा कुछ नहीं कहता। फिर चीन पिंगिन कहता है कि मैं तुम्हें 500 सेनट देने को तैयार हूं ताकि मेरे वालिदैन के लिए कुछ बेहतर लिखो। पिंडो राजी हो जाता है और कहता है कि फिक्र न करो। फिर वो 2 जर्द कागज लेता है, उन पर जादुई तहरीरें लिखता है और चीन पिंगिन को दे देता है। चीन पिंगिन खुश होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकुन ओल्ड मैन को कुनवे के पास ले आया था। ओल्ड मैन कुछ सोचने लगता है। गोकुन कहता है कि अब अपना वदा पूरा करो और मुझे कटोरे का राज दिखाओ। ओल्ड मैन कहता है कि जल्दबाजी ना करो। फिर पता चलता है कि गोकुन की हड्डी बहुत भारी है, जिससे ओल्ड मैन मुतासिर होता है। मगर जब वो सुनहरी कार्प देखता है तो कहता है कि ये तो वाटर ड्रैगन है। वो पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? गोकुन गुस्से में आकर कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? ओल्ड मैन इसके जज्बे को देखकर पूछता है कि तुमने ये कहाँ से सीखा? गोकुन जवाब देता है कि अपनी माँ से। तब ओल्ड मैन पूछता है कि चीन पिंगिन ने तुम्हें सुनहरी कार्प दिया था? गोकुन हैरत से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता, और धमकी देता है कि अगर तुमने इसे लेने की कोशिश की तो मैं चीन पिंगिन से कहकर तुम्हें पिटवाएगा। ओल्ड मैन चीन पिंगिन के बारे में हिसाब किताब करने लगता है और फिर गोकुन से पूछता है कि तुम्हारा और चीन पिंगिन का रिश्ता क्या है? गोकुन कहता है कि हम एक ही यतीम खाने में पले बड़े हैं। फिर ओल्ड मैन दोबारा हिसाब किताब करता है। इसके हाथ की लकीरों में ताकत आ जाती है। वो गोकुन से कहता है कि तुम्हारी तकदीर मेरे साथ है, अब मैं तुम्हें कटोरे का राज दिखाऊंगा। हम देखते हैं कि गोकुन बहुत पुरजोश हो जाता है, लेकिन जब ओल्ड मैन पानी को कटोरे से गिराता है तो पानी बढ़ने लगता है और पूरे शहर में तबाही आ जाती है। गोकुन डर कर भागने लगता है। ओल्ड मैन कहता है कि गोकुन मेरा चना हुआ शागिर्द है, इसलिए मैं इसके लिए नेक नीति से सोचूंगा और कोई भी मुझे इल्जाम ना दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसी एक लड़के के साथ बात कर रही होती है। वो कहती है कि 300 साल गुजर चुके हैं, तो क्या हम यहाँ कुछ हासिल कर सकते हैं? लड़का जवाब देता है कि हम यहाँ के राज जाहिर नहीं कर सकते। ये शहर चाहे जितना पुराना हो, यहाँ अब भी संत मौजूद है। वो कहता है कि हम यहाँ मौका की तलाश में आए हैं, इसलिए किसी भी कायदे को तोड़ने की कोशिश न करना और किसी को नुकसान न पहुँचाना। इनिजी इसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई थी। तभी वो लड़का कहता है कि अगर हमें यहाँ पर कोई सरप्राइज मिल जाए तो तुम उसके बदले में मुझे कैसे रिवार्ड करोगी? इस पर कासी और आंजी कहते हैं कि तुम जैसा चाहो, मैं इसके लिए तैयार हूं। तब इस पर लड़का कहता है कि बिजनेस तो बिजनेस होता है, इसलिए मुझे इसके बदले में तुम्हारे योनसिया माउंटेन से यूजन स्टोन चाहिए। ये सुनकर कासी आंजी भी मान जाती है और कहती है कि तुम सीन जी सीन को चुनो, जबकि मैं गोकुन को चुनूंगी। ये सुनकर वो भी मान जाता है, लेकिन तभी वो चीन पिंगिन को वहां देखते हैं, इसलिए वो दोनों इससे बात करने के लिए इसके पीछे जाने लगते हैं। मगर हम देखते हैं कि ओल्ड मैन उनके साथ कोई खेल खेलना चाहता था और इसीलिए वो चीन पिंगिन पर अपना कोई पावर इस्तेमाल करने लगता है। तब हम देखते हैं कि कासी आंजी बात करने के लिए चीन पिंगिन के पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे गोकुन और संग जी सुन के बारे में जानना चाहती हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो? इस पर चीन पिंगिन कहता है कि मैं कुछ वक्त पहले ड्रैगन कुन का अप्रीनट्स था और मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, इसीलिए अगर चाहो तो किसी और के बारे में पूछ लो। तब हम देखते हैं कि वो लड़का इसे रिवार्ड देने की बात करता है और कहता है कि तुम हमें सिर्फ उन 2 फैमिलीज के बारे में बता दो। मगर चीन पिंगिन कुछ बोले बगैर वहां से जाने लगता है। तब हम देखते हैं कि जावलन और वो लड़का वहीं मौजूद होते हैं और जावलन कहता है कि मैं ही संग जी सुन हूँ,
اس لیے बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तब वो लड़का कहता है कि हम गोकुन को भी तलाश करना चाहते हैं, इसलिए क्या तुम हमें इसके बारे में बता सकते हो। इस पर जावलन पूछता है कि इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का इसे कोई चीज़ देता है और चीन पिंगिन से कुछ कहकर वहां से चला जाता है। तब कासी आंजी कहती है कि शायद तुम इस बात का मतलब नहीं समझ पाए और उसका मतलब है कि तुमने एक बहुत बड़ी मौका गंवा दी। लेकिन तब हम देखते हैं कि कासी आंजी का पाँव गंदगी पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो चीन पिंगिन पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। हम देखते हैं कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करके अटैक करने वाली होती है, मगर फिर खुद को रोक लेती है। वो कहती है कि सेंस के रोज़ को नज़रअंदाज मत करो। तब हम देखते हैं कि कासी आंजी वहां से जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन ने अपने पावर से चीन पिंगिन को कंट्रोल में ले लिया था। इसीलिए चीन पिंगिन कासी आंजी के कपड़े को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी पलकें काफ़ी लंबी हैं। ये देखकर कासी आंजी चीन पिंगिन पर बहुत गुस्सा हो जाती है और किसी की बात ना सुनते हुए अपने पावर से चीन पिंगिन पर हमला कर देती है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि चीन पिंगिन का इमोटी बर्ज टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो लड़का कासी आंजी पर गुस्सा होता है कि तुमने इसकी मोटिलिटी बर्ज को तोड़ दिया और इस तरह तुम एक सीन को इश्तियाल दिला रही हो और तुम्हारे साथ साथ मैं भी इस मामले में कसूरवार बन जाऊंगा। लेकिन इस पर कासी आंजी कहती है कि मैंने इसे मारा नहीं है और वैसे भी इसके पास सिर्फ 1.5 साल की जिंदगी बाकी है। फिर वो कहती है कि ये तो मेरा है, इसलिए तुम उसकी फिक्र ना करो। तब हम देखते हैं कि वो लड़का जावलन की तरफ देखने लगता है, जिससे जावलन काफ़ी डर जाती है। फिर वो जसन से कहता है कि आज का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कल तुमसे ट्रेड करने आऊँगा। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जबकि जावलन भी चीन पिंगिन के बारे में कुछ नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद चीन पिंगिन को होश आता है और उसके पास से एक पता उड़ता हुआ निकल जाता है। उधर मास्टर अपने निसापिल से कह रहा होता है कि मैं अभी भी कई दहाइयों तक जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन अचानक मुझे पता चला कि इस संग के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, इसलिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। वो कहता है कि ये लोग मेरे होते हुए भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा, इसीलिए मैं इस बार तुम्हारे साथ यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि मास्टर इसे अपनी तरफ से एक फेयरवेल गिफ्ट देता है और कहता है कि तुम इस लोकुन सलैब को अपने पास रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि निसापिल भी इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। मास्टर कहता है कि शायद आने वाले वक्त में हम ज़रूर दोबारा मिलेंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक तलवारबाज लड़की खड़ी होती है। जैसे ही वो लड़की सामने आती है, निसाल कहता है कि ये तो बहुत ही दिलचस्प है, मगर तभी हम देखते हैं कि निंग नाम के इस लड़के को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती। तब मास्टर जावा से कहता है कि तुम चीज़ों को अपने घर ले जाने के बारे में सीखने वाले हो, लेकिन अगर तुम किसी को खुफिया तौर पर पसंद करते हो तो फिर इसे बुद्धा भी नहीं रोक सकता। फिर वो कहता है कि ये तो सिर्फ एक इकरार है, इसलिए ना तुम कुछ बोलना, ना कुछ सुनना और ना अपनी जगह से हिलना। उसके अलावा वो इसे किसी गलत चीज़ के बारे में सोचने से भी मना करता है। वहीं हम देखते हैं कि निंग वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जावा कहता है कि इसकी खुशबू तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन ऐसी बात सुनकर निंग काफ़ी गुस्सा हो जाती है और फौरन ही जावा को मारने के लिए आती है, मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर अपने पावर का इस्तेमाल करके इसे रोक लेता है, इसलिए निंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। फिर मास्टर कहता है कि एक लाइन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके खरगोश के साथ लड़ रहा है और मैं मानता हूं कि जावा ने तुम्हें नाराज़ किया है, लेकिन फिर भी तुम इस छोटी सी गलती पर इसे नहीं मार सकती। मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि निंग इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं इसके साथ जो चाहूंगी वो करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर को भी चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल करके मास्टर पर हमला करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर को छूना भी इसके बस की बात नहीं होती और वो इसके हमले से बहुत आसानी से बच जाता है। फिर वो कहता है कि ये तो मिलिट्री मार्शल आर्ट है, इसलिए तुम सिर्फ रफ्तार से कुछ भी नहीं कर सकती। मगर अभी भी हम देखते हैं कि निंग इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वो दोबारा मास्टर पर हमला करने के लिए जाती है। हम देखते हैं कि मास्टर को इसके बारे में ज़रा भी फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो निंग के हमले से आसानी से बच रहा था और इसलिए वो कोशिश करने के बावजूद मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तब हम देखते हैं कि मास्टर ने निंग की कमीज़ को भी पकड़ लिया था, जिससे निंग अपनी तलवार भी नहीं हिला पाई। तब अचानक हम देखते हैं कि निंग अपने फ्लाइंग श्रिड का इस्तेमाल करके हमला करती है, लेकिन इस बार भी मास्टर ने खुद को बचा लिया। इसीलिए निंग इस बार भी मास्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, मगर अभी भी हम देखते हैं कि निंग हार मानने वाली नहीं होती। वो मज़ीद ताकत का इस्तेमाल करने लगती है और दोबारा मास्टर पर हमला करती है, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी और निंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तब हम देखते हैं कि मास्टर बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है,
जिसे देखकर निंग फौरन पीछे हिट जाती है। वो दोबारा अपने फ्लाइंग श्रिड का इस्तेमाल करके मास्टर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी कुछ हासिल नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि मास्टर फिर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें ये तलवारबाजी किसने सिखाई। लेकिन निंग अब भी मास्टर पर हमला करना चाहती थी, इसलिए मास्टर अपने पावर का इस्तेमाल करके इसे दूर कर देता है। फिर मास्टर निंग से कहता है कि मार्शल आर्ट में एक एक कदम बढ़ाना ज़रूरी होता है, इसलिए तुम एक लम्हे में अजीम बनने की कोशिश मत करो। फिर वो कहता है कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। तब हम देखते हैं कि मास्टर निंग के श्रिड को देखने लगता है और कहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 अल्फाज को बर्दाश्त कर सकता है। अगर तुम्हारे कल्ट की बात की जाए तो इसके लिए 3 अल्फाज काफ़ी हैं। फिर हम देखते हैं कि मास्टर जैसे ही इस पर टेप करता है तो इसकी ताकत चारों तरफ फैलने लगती है। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और निंग को वापस कर देता है, लेकिन निंग इसे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं होती। ये देखकर मास्टर निंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तब निंग कहती है कि मैंने सुना है कि हर मिनट में सेंस तब्दील होते रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम कोई सेनेट हो। फिर मास्टर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या खो दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि निंग को इसकी कोई परवाह नहीं होती और वो तलवार छोड़कर वहां से जाने लगती है। फिर मास्टर कहता है कि ये तुम्हें दिफा दे सकता है, लेकिन निंग इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती और खामोशी से वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग जा रही होती है और मास्टर के बारे में सोच रही होती है। तब अचानक इसे एहसास होता है कि इसके पीछे कोई है। फिर अचानक इसे लगता है कि कोई तलवार लेकर उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए निंग अपने श्रिड का इस्तेमाल करके हमला करती है। लेकिन तभी इसे पता चलता है कि ये तो मास्टर का दिया हुआ सॉवर्ड है और इसीलिए वो नाराज हो जाती है, वहां से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम गामा और वो को देखते हैं, जहां गामा ने अपने हाथ में कोई खजाना पकड़ा हुआ था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके सामने नंग आ जाती है, इसीलिए वो फौरन गामा के सामने खड़ा हो गया ताकि इसे किसी भी खतरे से बचा सके। तभी गामा वो से कहता है कि अभी भी ये काम बाकी है, इसलिए तुम यहाँ कुछ भी करने की कोशिश ना करना। लेकिन हम देखते हैं कि नंग चुपचाप वहां से जाने लगती है, जबकि वो कहता है कि नंग ने कल्टिवेशन की है, इसलिए हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। अचानक हम देखते हैं कि सामने से कोई खंजर गामा पर हमला करने आता है, लेकिन वो इसे बरवक्त रोक लेता है और फौरन इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो तो कोई और है जो गामा को मारना चाहता था, लेकिन फिर नंग अपने फ्लाइंग शारूड का इस्तेमाल करके दुश्मन को मार देती है, जिसे देखकर गामा कहता है कि यहाँ की कल्टिवेशन तो दबी हुई है, फिर भी ये फ्लाइंग शारूड का इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नंग से बात करने की कोशिश करता है, मगर नंग बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती और किसी भी बात से कोई मतलब नहीं रखती। तब वो कहता है कि शायद इसने जानबूझकर अपने साथी को मारा हो ताकि तुम्हारा एतमाद हासिल कर सके, मगर फिर भी गामा इसकी बात पर ध्यान नहीं देता और नंग से मुआफ़ी मांगने जाता है। वो नंग से कहता है कि मैंने तुम्हें नाराज़ किया है, इसलिए मुआफ़ी के तौर पर यह ख़जाना देना चाहता हूँ। लेकिन नंग कहती है कि यह तो एक नायाब मौका है और आप मुझे ये देकर मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। हम देखते हैं कि नंग को अब भी इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो खामोशी से वहां से चली जाती है। तभी गामा कहता है कि मैं सुई डाइंसिटी से हूँ और हमेशा सिर्फ बादशाह के सामने सर झुकाया है, लेकिन अभी भी लगता है कि वो नंग को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, इसीलिए वो फौरन इस पर हमला कर देता है। ये देखकर नंग भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगती है और ख़ुद को बचाने की कोशिश करती है। वो ऊपर हमला करने की भी कोशिश करती है, मगर हमला आवर इस पर हावी हो जाता है। मगर नंग हार मानने वाली नहीं होती, इसलिए वो दोबारा मुकाबला करती है, लेकिन दुश्मन अभी भी नंग पर भारी पड़ रहा था। तब हम देखते हैं कि वो बहुत ख़तरनाक अंदाज में नंग पर हमला करता है और नंग बुरी तरह ज़ख्मी हो जाती है। इसके बाद दुश्मन नंग को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन नंग का फ्लाइंग शारूड एक्टिवेट हो जाता है और दुश्मन पर हमला कर देता है। इस मौका का फ़ायदा उठाकर नंग वहां से गायब हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि गामा वो पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि लड़की को अभी मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। वो पूछता है कि क्या तुम मुस्तकबिल में मेरे साए के कातिल बन सकते हो। हम देखते हैं कि वो अपनी ताकत को आसानी से निकाल देता है, मगर गामा अब भी गुस्से में कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं सुई डाइंसिटी का शहजादा बनने वाला हूँ। वो मज़ीद कहता है कि हमारी फैमिली कहती है कि हम गलती से भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ सकते। तभी हम देखते हैं कि एक सीनियर उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो। हम देखते हैं कि वो की हालत ख़राब हो जाती है और वो मुआफ़ी मांगने लगता है। गामा कहता है कि अगर अब चाहें तो हम यहाँ से जा सकते हैं। सीनियर कहता है कि अगर तुमने सबसे पहले मौका ना लिया होता तो यहाँ से जाना आसान ना होता। फिर हम देखते हैं कि चीन पिंगिन अपने आप को एक पिल पर देखता है,
जो अचानक टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद इसे कोई जाता हुआ दिखाई देता है तो वो फौरन इसके पीछे भागता है। वो अपने वालिद को याद करता है मगर वो अचानक गायब हो जाते हैं। इसे अपना बचपन याद आता है जहाँ सब इसे बलू करते थे। फिर इसे अपनी माँ की याद आने लगती है और वो होश में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकुन दौड़ते हुए इसके पास आता है और इसे एक छोटे बुद्ध के बारे में बताता है। चीन पिंगिन पूछता है कि क्या तुम स्टोरी टेलर वाले बूढ़े आदमी की बात कर रहे हो? गोकुन कहता है कि हाँ, और हमें इस बारे में फैसला करना होगा। फिर हम देखते हैं कि गोकुन के घर वो बूढ़ा आदमी और कासियंजी आते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने गोकुन को अपना शागिर्द बनाने का फैसला कर लिया है। अगर तुम में सलाहियत है तो इसे ले जाओ, वरना यहाँ से चली जाओ। मगर कासियंजी आसानी से हार नहीं मानती और बूढ़ा अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। कासियंजी एक और जगह चली जाती है जहाँ सांप जैसे मखलूक इस पर हमला करते हैं। कासियंजी अपनी ताकत इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करती है मगर ज्यादा देर तक कामयाब नहीं होती। आखिरकार सांप इसे जकड़ लेते हैं, लेकिन ये सब एक धोखा होता है। इसी वक्त गोकुन और चीन पिंगिन वहां पहुंचते हैं और बूढ़े आदमी को देखकर गोकुन की हालत खराब हो जाती है। इसकी माँ कहती है कि इसके सामने जाकर बात करो, मगर गोकुन कहता है कि मैं शागिर्द नहीं बनना चाहता। चीन पिंगिन कहता है कि शागिर्द बनाने के लिए कम अज़ कम गोकुन की रजामंदी ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं कि गोकुन की माँ ज़बरदस्ती इसे भेजने पर राज़ी हो जाती है। चीन पिंगिन भी मान जाता है और गोकुन को समझाने लगता है। फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि अपने बाउल में देखो और अपने पावर का इस्तेमाल करके कुछ दिखाता है। गोकुन देखता है कि ये तो चीन पिंगिन का दिया हुआ कार्प है। इसकी माँ इसे मारती है मगर फिर भी गोकुन हार मानने को तैयार नहीं होता। बूढ़ा इसे बाउल में खींच लेता है और कहता है कि इसे खामोश रहने दो। इसके बावजूद कोई गोकुन पर हमला नहीं करता मगर वो डर कर वहां से भागने लगता है। फिर वो चीन पिंगिन की सालगिरह पूछता है जिस पर बताया जाता है कि वो 5 मई को पैदा हुआ था। कमीवटीशन करके बूढ़ा कहता है कि चीन पिंगिन के वालिद ने एक बहुत बड़ा उसूल तोड़ा है, इसलिए इसकी मौत आसान नहीं होगी। बूढ़ा मजीद कहता है कि तुम्हारे बेटे ने दूसरों से बहुत बड़ा मौका चराया है। मगर गोकुन की माँ को कोई अफसोस नहीं होता और कहती है कि चीन पिंगिन की माँ भी ऐसा ही करती। बूढ़ा कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बूढ़ा कहता है कि गोकुन और चीन पिंगिन के दरमियान किस्मत का रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए, इसीलिए वो अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है।